Hi guys, welcome to lecture number 10. We were discussing the transformation of Indian agriculture and what has been the state of Indian agriculture over time. तो उसमें हम लोग अलग अलग टेबल्स के थ्रू समझ रहे थे कि what have been the changes that have taken place so far, right? तो उसमें we've talked about diversification in agriculture, किस किस तरीके की क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं, आप सीरियल्स या नॉन सीरियल क्रॉप्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हो या नहीं, इस तरीके की चीजें हमने अलग अलग देखी. व्हाट इज हैपनिंग टू इन्फ्लेशन, व्हाट इज हैपनिंग टू एग्रीकल्चर जीवीए, वॉलेटिलिटी कितनी है, पल्सेस और सीरियल प्रोडक्शन में कितनी वेरिएबिलिटी है. इस तरीके के कुछ टेबल्स को हम लोग स्टडी कर रहे थे. Similar pattern पे there are some other things that we would like to talk about regarding what has been the transformation of the agricultural sector. तो basically कुछ important points निकल के आते हैं, उसको हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं. तो देखो, रूरल एरियाज में जो नॉन फार्मिंग सेक्टर है, रूरल एरियाज में एक फार्मिंग सेक्टर है और एक नॉन फार्मिंग सेक्टर है. सो ओवर टाइम व्हाट हैज हैपेंड इज दैट रूरल नॉन फार्मिंग सेक्टर, non-farming sector has grown in importance. जिसमें और अलग तरीके की सर्विसेज हो गई अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑल्सो. सो इन टर्म्स ऑफ नंबर अराउंड 1983 के टाइम पे दिस वाज अबाउट 19% द रूरल नॉन एग्रीकल्चर नॉन फार्मिंग सेक्टर, एंड दिस became about 36% in 2011-12. This is what has happened over time. Apart from that, 40% of rural males were in the non-farm employment. So that would mean about 60% of those are in farm employment. And similarly, we talk about this particular number for females, about 25% of rural females are in the non-farm agricultural, non-farm employment sector. And again, then that means 75% remain in agriculture. All right. Apart from that, if we look at the monthly income data or monthly income data for rural India, तो कुछ और पैटर्न्स निकल के आते हैं कि जो उनकी मंथली इनकम है उसका मेजॉरिटी पोर्शन कहाँ से आ रहा है. सो इफ वी लुक एट दैट, वी सी दैट अगर जैसे हम लोग if we look at this particular table, so what is this table showing? Let's see. So if you look at this, yeah, this table, what is this talking about? This is talking about average monthly income of agricultural households in current prices. So pure agriculture, animals, wages, non-farm businesses, total. So 2003 May in total the income was this much, 2013 was this much in total income. And उसमें से cultivation का role, animal का role, wages जो as labor कमा रहे हैं, non-farm business वाला sector, that is these are the numbers which have changed. तो यहाँ पे इस तरीके से growth हुई है. So if we also talk about share in total income, so agricultural income was about 45.8% in 2003, and it was about 47.9, which is approximately 48% of the income from the proper farm sector. And animal या बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री, उससे जो वेजेस मिल रही हैं वो बढ़ रही हैं. वेजेस से जो पोर्शन ऑफ इनकम आ रहा है वो कम हो गया है, एंड नॉन फार्म बिजनेसेस से जो इनकम आ रही है वो कम हो रही है. सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड
over time. तो if we look at the numbers, तो जो average monthly income है, that is that has increased from rupees 2115, ये वाला जो डेटा है, 26426, यहाँ पे 2003 डेटा, ये 2013 डेटा. And majority portion of your income is still coming from the cultivation. See, यहाँ पे 46%, यहाँ पे 48%. So still cultivation is the majority of the part from where your income is coming, right? So this is what is happening here. Apart from that, uh, ये जो लाइव स्टॉक से जो आपको इनकम मिल रही है, जो एनिमल्स के थ्रू जो आपको इनकम मिल रही है, दैट इज समथिंग विच हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली. तो इसमें काफी ग्रोथ आई है, ठीक है. वाइल जो वेजेस और नॉन फार्म बिजनेसेस से जो अब आपको इनकम मिल रही है, दैट हैज डिक्लाइंड ओवर टाइम. सो दिस इज बेसिकली थ्रू दी एनएसएस सर्वे. ये जो डेटा है, ये एनएसएस सर्वे से मिलता है. उसके अलावा वी हैव अदर डेटा एज वेल. वी हैव अनदर स्टडी बाय नाबार्ड. So NABARD की जो स्टडी है रिगार्डिंग द वेजेस एंड द इनकम्स ऑफ रूरल इंडिया, वहां से हमें क्या समझ में आता है कि ओवरऑल 35% ऑफ इनकम इज फ्रॉम कल्टिवेशन. Approximately similar amounts is from wages. 16% is from salaries and 8% is from livestock. इस तरीके का डेटा हमें देखने को मिलता है फ्रॉम द नाबार्ड. नाबार्ड डेटा टेल्स अस दिस, राइट. तो एंड इससे ना एक चीज और समझ में आती है कि देखो, फार्मर्स सिंगल हैंडेडली एक ही चीज पे रिलाय करें, ये बहुत ही कम देखने को मिल रहा है. दे आर डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल एक्टिविटीज, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, क्योंकि एक इनकम उनके लिए सफिशिएंट नहीं हो रही है इन ऑर्डर टू लिव अ लाइफ कंफर्टेबली. तो जो डेटा है उससे ये समझ में आता है कि जो सर्वे डेटा है वहां से ये समझ में आता है कि ओनली 13% ऑफ फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे रिलाई ऑन सिंगल इनकम सोर्स. मतलब इनको मल्टीपल इनकम सोर्सेस जनरेट करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है. 13% लोग सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई कर रहे हैं. 13% इज वेरी लेस ओवरऑल. तो 50% जो लोग हैं, दे हैव टू इनकम सोर्सेस, and about 29% have three income sources. ठीक है. And about 9% have four sources. So ये सब फार्मर्स की बात हो रही है जिनके पास क्या है, ये सब फार्मर्स की बात हो रही है, ठीक है. And 80% of non-agricultural households, they depend on a single source of income. So these are the people who have at least, some sort of piece of land. ये उनके लिए डेटा है. 80% of the 80% of non-agricultural households, they depend on a single source. So basically, agricultural household, the people who have some sort of piece of land, that can be small, that can be large. Within that, this is the proportion of different sources of income that they have. And out of the people who don't have any piece of land, 80% of them are relying on a single source of income. That could be through selling their labor, wages, वो सब तरीका हो सकता है उनके लिए पैसा कमाने का. And this is a huge number for the people who are landless, जिनके पास land नहीं है, ठीक है. So this is what we have. And तो फार्मर्स के लिए हमने क्या देखा, जो फार्मर्स हैं उनके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है. एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर दोनों में है.
So agri sector also, non-agri sector also, non-farm sector also, to improve rural incomes. एंड प्लस एक चीज ये भी है कि देखो फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में थोड़ी सीजनैलिटी है कि कभी हो सकता है हार्वेस्ट बहुत अच्छा हो सकता है हार्वेस्ट बहुत बुरा हो। तो यू हैव टू काइंड ऑफ बैलेंस थिंग्स आउट। ऐसा नहीं कर सकते कि तुम सिर्फ एक ही चीज पे हाईली डिपेंडेंट हो। और अगर तुम्हारी चीज बहुत वेदर डिपेंडेंट है तो हो सकता है कि ठीक है वेदर खराब हो तो तुम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। सो काइंड ऑफ diversification is also needed in order to balance the risk that is involved. ठीक है। So this is something that we see what has been the pattern regarding our first basically goal. तो हमने तीन goals की बात की थी। If you don't remember, let me just bring that forward to you. So there were three goals, तीन मेजर, तीन ब्रॉड गोल्स की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें से एक तो ग्रोथ ओरिएंटेड गोल था। तो जिसमें हमने अलग अलग चीजों की बात की कि उनकी इनकम किस तरीके से है, एम्प्लॉयमेंट का क्या पैटर्न है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए, ये सब तरीके की चीजें। दूसरा गोल था इंक्लूसिवनेस ओरिएंटेड गोल्स, मतलब कि जो भी आप ग्रोथ कर रहे हो उसमें इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, अलग अलग पीपल, women, यूथ, different different regions of the country, they should be included as a part of that. एंड देन देर आर सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड गोल्स कि ठीक है तुम ग्रोथ कर रहे हो, तुम चीजें ग्रो कर रहे हो, इन यू नो productivity is rising, but these things should also be sustainable, right, over a long period of time. It should not be like you're using it excessively and making it unusable for the upcoming generations, or will leave upcoming generation अभी ही इस तरीके के repercussions आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आपको इमीडिएटली एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स वेदर, वेदर इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये दो गोल्स भी हैं। तो पहले गोल की हमने बात करी विच इज ग्रोथ, एंड देन दी देर आर अदर वंस। जो दूसरा हमारा गोल है दैट इज रिगार्डिंग इंक्लूसिविटी, उसके बारे में अब हम लोग थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द थर्ड वन विच इज सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सो गोल वन के बारे में हमने काफी बात कर ली है। लेट्स टॉक अबाउट गोल नंबर टू विच इज inclusiveness, which is equity in agriculture. So goal number two, which is inclusiveness, which means equity in agriculture. तो हमारा देखो गोल ये है कि हमें एग्रीकल्चर में ग्रोथ चाहिए, बट ये जो ग्रोथ है दैट शुड बी शेयर्ड बिटवीन द डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स, राइट। सो शेयरिंग द ग्रोथ, आपको ग्रोथ शेयर करनी है। Sharing the growth and achieve equity. तो इट शुड नॉट बी लाइक कि जो आप ग्रोथ कर रहे हो वो उसका बेनिफिट सिर्फ कुछ लिमिटेड सेट ऑफ पीपल या लिमिटेड सेक्टर्स, लिमिटेड कैटेगरीज तक ही इन्वॉल्व है। एवरीबडी शुड टेक बेनिफिट ऑफ दैट, राइट। सो मतलब इंक्लूसिविटी इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर का क्या मतलब होगा? इंक्लूसिविटी इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये होगा कि अलग अलग रीजन्स को बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, विमेन को बेनिफिट मिलना चाहिए, यूथ को बेनिफिट मिलना चाहिए, जो भी डिसएडवांटेज्ड सोशल ग्रुप्स हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। डिसएडवांटेज्ड सोशल ग्रुप्स, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट there are people, there are farmers who have very small land holdings, and there are farmers who have very large land holdings. There are farmers who are using a piece of land and they have all irrigation facilities, and then there are farmers who are dependent on rainfall entirely, right? ये differences भी हैं। तो farmers, ठीक है, उसके बाद irrigated
मतलब जहाँ पे इरिगेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इरिगेटेड वर्सेस रेन फेड एरियाज, मतलब जहाँ पे पानी रेन की वजह से ही आ रहा है, रेन फेड एरियाज। ठीक है, रीजन्स में भी ईस्टर्न रीजन को थोड़ा फोकस मिलना चाहिए, दैट इज समथिंग विच इज क्लियरली नेग्लेक्टेड, राइट। इस तरीके की चीजें जो है, इन सबको बेनिफिट अगर आप पहुंचा पाते हो, तो दैट इज समथिंग दैट विल बी कमिंग अंडर इंक्लूसिविटी, कि जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ है उसके बेनिफिट्स हर तरीके के सेक्शन को पहुंच रहे हैं। दिस इज आवर सेकंड गोल। फर्स्ट गोल इज ग्रोथ, सेकंड goal is growth should also be shared among people and different groups that we potentially have, right? तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो अब इसके लिए ना बहुत अच्छा तरीका है कि आप अगर अलग अलग टेबल्स को देखते हो, तो दे काइंड ऑफ गिव यू नाइस रफ आइडियाज। सो देखो, सबसे पहली चीज, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं। सो 2015 और 16 की एग्रीकल्चरल सेंसस के हिसाब से इंडिया हैज अबाउट 145.7 मिलियन एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स। मतलब इतने एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स हैं, कि इतने अलग अलग पीसेस ऑफ लैंड्स हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, जिसमें से इतने जितने भी एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स हैं, इस होल्डिंग में से 118 मिलियन कौन से हैं, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म्स हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे पीसेस ऑफ लैंड। ठीक है। और जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म्स का शेयर है इन टर्म्स ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल लैंड, वो पहले अबाउट 70% था in 1980s to 81, and this became 86% in 2015 to 16। तो एक तरीके से इससे यही समझ में आता है कि जो पीस ऑफ लैंड है उसके फ्रैगमेंट्स और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो पीस ऑफ लैंड है वो और ज्यादा टुकड़ों में बंटता जा रहा है। उसका पॉसिबल रीजन क्या है कि जनरेशन टू जनरेशन जब पीस ऑफ लैंड बेचा जाता है, नॉट बेचा जाता है, जब वो ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू अनदर, देन देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर द कंटेंडर्स फॉर दैट पीस ऑफ लैंड। मान लो एक फादर है जिनके पास एक पीस ऑफ लैंड है, उनके दो बच्चे हैं, सो दैट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू पीसेस, तो वो एक फ्रैगमेंट को और टुकड़े में कन्वर्ट करने वाली बात हो जाती है। एंड धीरे धीरे जो ओवरऑल फ्रेगमेंटेशन है वो बढ़ ही रही है, ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म्स का। ठीक है। एंड टोटल जो लैंड होल्डिंग है इन टर्म्स ऑफ साइज, 69% ऑफ लैंड होल्डिंग जो है, दैट बिलोंग्स टू मार्जिनल फार्मर्स। मतलब दे डोंट हैव वेरी बिग पीसेस ऑफ लैंड। एंड मार्जिनल फार्मर कौन से, जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम पीस ऑफ लैंड है, विद लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक है। तो हमने क्या बोला, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है, दे हैव अबाउट 86% ऑफ टोटल फार्म, दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 86% ऑफ टोटल फार्म हाउस होल्ड। तो मतलब जितने भी लोग हैं जो फार्मिंग में इन्वॉल्व है, उसमें से 86% जो है, दे आर द वंस हु आर स्मॉल एंड मार्जिनल। एंड वो कितना एरिया ऑपरेट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ एरिया कितना ऑपरेट करते हैं, so 86% of total farm households. This is in terms of numbers, इतने लोग। और ये कितना लैंड एरिया ऑपरेट करते हैं, 44% ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल एरिया। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव।
So if I show you a table, let's see a table which will give us some sort of ideas. So let's see this table. What changes have happened in the agrarian structure? तो देखो इसमें क्या है कि साइज ऑफ द फार्म, फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम, लार्ज, ऑल। ठीक है। और ये स्मॉल किसको बोल रहे हैं, सेमी मीडियम किसको बोल रहे हैं, ये सब हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। शेयर इन ऑपरेटेड एरियाज, दिस इज शेयर इन फार्म होल्डिंग्स। ठीक है। एंड दिस इज एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग्स। तो बेसिकली अगर 100 लोग फार्मर्स है ना, ये पहला जो कॉलम है इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोग फार्मर्स हैं तो उसमें से 51% पीपल आर मार्जिनल फार्मर्स, 18.9% आर स्मॉल, देन सेमी मीडियम देन लार्ज एंड ऑल। ये दिस इज द नंबर दैट वी हैव। ठीक है। सो लेट्स से इफ देर आर 100 फार्म्स, उसमें से 51% फार्म्स जो हैं वो स्मॉल होंगे। दिस इज असेंशियली व्हाट वी मीन हियर। एंड जो स्मॉलर होल्डिंग्स का परसेंटेज है दैट हैज ग्रोन ओवर टाइम। ठीक है। लार्जर का परसेंटेज हैज फॉलन ओवर टाइम। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। शेयर इन ऑपरेटेड एरिया मतलब ये जो अलग अलग फार्मर्स हैं, मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम, लार्ज, इनके अंडर जितना एरिया ऑपरेटेड है, how has that changed? So the area that was operated under marginal farmers has grown to 24.2%. ठीक है। And this, the area that is under large farmers operation, that has fallen down from, यहाँ पे 30% एरिया ये लोग ऑपरेट करते थे, अब सिर्फ 9% ऑफ टोटल एरिया इज बीइंग ऑपरेटेड। एवरेज साइज, व्हाट हैज हैपेंड टू द एवरेज फार्म साइज? तो एवरेज फार्म साइज पहले 2.28 हुआ करता था, अब वो 2015-16 में आके 1.08 हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट आधा हो गया है एवरेज साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। तो मतलब इसका एसेंशियली मतलब ये है कि जो चीजें हैं, जो फार्मलैंड्स हैं, उनके फ्रैगमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। ज्यादा प्रोडक्टिविटी का स्कोप कहाँ होता है? जहाँ पे पीस ऑफ लैंड बड़ा होता है, आप उसमें मशीन्स ऑपरेट कर सकते हो, थोड़ा सा मैकेनाइज कर सकते हो। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो आप भी लिमिटेड हो गए, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का भी आप ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे। मैन्युअली यू हैव टू stick to doing things, right? So this is what has happened here. Now, if we also look at other things, so let me also show you few other tables. काफी सारे अलग अलग tables हैं. Every table is talking about something or the other. Yeah, so let's look at this. What is this table showing? So this is talking about consumption, income and wealth inequality in India. Rural areas में क्या है और urban areas में क्या है? तो if we talk about total consumption inequality, उसके लिए गिनी कोएफिशिएंट का नंबर ये है, इनकम के लिए इतना है और वेल्थ के लिए इतना है। ठीक है। वेल्थ के बीच में लोगों के डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, फिर इनकम के बीच में और ज्यादा थोड़ा सा कम है, और कंजम्पशन के बीच में और कम है। राइट। सो कंजम्पशन, इट इज नेचुरल टू सी दैट कंजम्पशन का जो गिनी कोएफिशिएंट है वो सबसे कम है। क्यों? क्योंकि everybody will be doing consumption, whether you're poor, whether you're rich, some sort of consumption you will be doing, because बहुत सारी चीजें नेसेसिटी होती हैं तो आप उतना तो एटलीस्ट करोगे। इवन दो आपकी इनकम हो सकता है बहुत ज्यादा हो या हो सकता है बहुत कम है, आप बेसिक बेसिक चीजें ऑन कंजम्पशन यू विल डेफिनेटली बी डूइंग। सो सबसे लीस्ट वेरिएशन जो है वो कंजम्पशन के बीच में होगा अमंग पीपल। ठीक है। Gini coefficient will tell you the differences, inequality in consumption. So least inequality in consumption है, फिर इनकम में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनकम में फिर बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रम आ जाता है कि लोगों के पास अलग अलग लेवल ऑफ इनकम होगी, बट स्टिल काफी सारा प्रोपोर्शन वो कंजम्पशन तो करेंगे। ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे आपने अलग अलग इनकम के लोग लोग देख लिए। ठीक है। कंजम्पशन के बीच में उनके बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है जितना उनकी इनकम के बीच में डिफरेंस है।
और उनकी वेल्थ के बीच में बहुत डिफरेंस है। वेल्थ में इनकम भी आती है और भी अदर सोर्स आते हैं, कि अगर उनके पास बाइक है, गाड़ी है, घर है, पीस ऑफ लैंड है, वो सब भी उनकी वेल्थ है, राइट। तो वेल्थ के बीच में बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी, इनकम के बीच में और कम, और कंजम्पशन के बीच में और कम, एंड दिस इज द सेम पैटर्न दैट वी बीन सीइंग हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट, रूरल एरियाज में कंजम्पशन के बीच में इनइक्वालिटी इज लेसर एज कंपेयर टू द अर्बन सेटिंग्स, ठीक है। सिमिलरली इनकम के बीच में जो वेरिएबिलिटी है वो हमें रूरल एरियाज में ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। एंड वेल्थ के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन अर्बन सेटिंग्स एज कंपेयर टू द रूरल सेटिंग्स। सो दीज आर सम ऑफ द ट्रेंड्स दैट आर सीन। ऑल राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट, सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा कि इनकम इनइक्वालिटी जो है वो हायर है हियर इन rural areas as compared to the urban areas. That is one thing. And consumption and wealth inequality जो है, consumption and wealth, that is lesser in the rural areas as compared to the urban settings. ये कुछ चीजें देखी। अब उसके अलावा if we look at this table, this particular table, what does it tell us? देखो, आपको टेबल पढ़नी जरूर आनी चाहिए, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने इधर उधर देखे हैं, बट इसको इंटरप्रेट करना इज समथिंग दैट इज हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। और मेन चीज वही है, क्योंकि पैटर्न्स आपको यहीं से दिखेंगे, डेटा को इंटरप्रेट करना यहीं से आपको सीखना पड़ेगा। तो जैसे ये टेबल है, ये किस चीज की बात करती है? ट्रेंड्स इन इनइक्वालिटी इन रूरल एरियाज, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कंजम्पशन 1993, फिर 2004 5 और 2011 12, ये डेटा दिया हुआ है। तो ये पैटर्न देख के समझ में आ जाएगा कि इनइक्वालिटी इन कंजम्पशन बढ़ी है कि कम हुआ है। तो कंजम्पशन इनइक्वालिटी तो बढ़ी है, मतलब पहले जितना लेवल ऑफ कंजम्पशन था, अब उसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं लोगों के, वो बढ़ गए हैं। 2004 से 5 में ज्यादा डिफरेंस था, फिर 11 12 में और बढ़ गया डिफरेंस, ठीक है। अगर आप वेल्थ की बात करो तो वेल्थ यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर, एंड यहाँ पे इट हैज ग्रोन, एंड सिमिलरली द इनकम इनइक्वालिटी हैज ऑल्सो ग्रोन, ठीक है। तो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा ग्रोथ तो किया है यहाँ पे, दैट इज समथिंग दैट वी सी। अब उसके अलावा देखो, स्टेट्स में अलग अलग डिफरेंसेस कैसे रहे हैं, वो भी देखने की बात है। सो टेबल 15 इज टॉकिंग अबाउट द एस्टिमेट्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो बेसिकली ये सब हमको क्या बता रहे हैं कि जो बेनिफिट्स हैं, हमारा सेकंड गोल क्या था? इंक्लूसिविटी का, कि भाई सबको बेनिफिट मिलने चाहिए। तो ये जो गिनी कोएफिशिएंट देख रहे हो, ये लैंड होल्डिंग्स देख रहे हो, इससे यही तो पता चल रहा है ना कि कितना डिफरेंसेस है, कितनी इनइक्वालिटीज हैं, यही सब तो देखने को मिल रहा है ना। तो अब यहाँ पे एस्टिमेट्स ऑफ इनइक्वालिटी इन पर कैपिटा इनकम एंड MPCE for agricultural household. So this is Gini coefficient of per capita income, and this is MPCE, right? So this is income and this is consumption. This is per capita expenditure, right? So this is consumption, this is income. तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, ये सब अलग अलग स्टेट्स के लिए नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल तो आपको जो नंबर दिखता है वो है इनकम इनइक्वालिटी इतनी है और कंजम्पशन इनइक्वालिटी कम है। क्लियरली वी हैव सीन द सेम पैटर्न फॉलोइंग, कि कंजम्पशन इनइक्वालिटी का नंबर कम होता है, गिनी कोएफिशिएंट ऑफ कंजम्पशन इज लेसर। And if you see the where is the inequality very high, so यहाँ पे जो highest number देखने को मिलता है, that is in Bihar, which is 0.61। यहाँ पे ये जो नंबर हमें हमें देखने को मिला है, and then Andhra Pradesh is also 0.60 here, and rest are all lesser than that. So income inequality is quite high in Kerala, in Karnataka, in Tamil Nadu, in UP also, in Maharashtra also. And if you see all these numbers ना, इसमें सबसे highest number यहाँ पे आ रहा है of Kerala. Consumption inequality is the highest in Kerala, right?
So this is what we see. एंड ऑल्सो इफ यू सी दीज, जैसे बिहार के बीच में अगर आप ये डिफरेंसेस देखोगे, तो यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी, इनकम का गिनी कोएफिशिएंट और जो कंजम्पशन का गिनी कोएफिशिएंट है उसके बीच में काफी बड़ा गैप है, एंड आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट गैप्स दैट यू हैव सीन हियर। ऑलमोस्ट 0.40 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो दोनों के बीच में देखने को मिलता है। तो इनकम इनइक्वालिटी इज टू मच, कंजम्पशन इनइक्वालिटी इज वेरी वेरी लेस कंपेरेटिवली, राइट? तो ये सब हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा ये चीजें विलेज लेवल पे भी स्टडी करी जाती हैं। तो इसमें देखने को मिलता है कि कुछ फाइंडिंग्स हैं। सो देयर वाज अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट ऑन एग्रेरियन रिलेशंस इन इंडिया। शॉर्ट फॉर्म में इसको परी बोलते हैं, प्रोजेक्ट ऑन एग्रेरियन रिलेशंस इन इंडिया। वेरी नाइस एक्रोनिम्स दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ मेकिंग। सो ये जो प्रोजेक्ट था उसमें इनकम इनइक्वालिटी को स्टडी किया गया था इन 17 विलेजेस इन 9 डिफरेंट स्टेट्स, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये सबको स्टडी किया गया था। एंड द स्टडी पीरियड वाज फ्रॉम 2005 टू 2011, एंड देयर वर थिंग्स व्हिच वर फाउंड। क्या चीजें, क्या की फाइंडिंग्स रही है सर्वे की, कि इनकम इनइक्वालिटीज जो है वो काफी हाई थी कंपेयर टू कंजम्पशन इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी इन ऑल दीज विलेजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन 9 स्टेट्स, जो नौ स्टेट्स की बात हुई है, इनमें इनकम इनइक्वालिटी काफी हाई थी, एक्सीडिंग द कंजम्पशन इनइक्वालिटी। सो हाई इनकम इनइक्वालिटी exceeding the consumption inequality. एंड देयर वाज वन अनदर थिंग दैट वाज फाउंड, कि विलेज लेवल पे बहुत ज्यादा वेरिएशन। तो इनइक्वालिटी है, बट ऐसा नहीं है कि सब विलेजेस में सिमिलर लेवल ऑफ इनइक्वालिटी देखने को मिले। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन दैट यू सी अमंगस्ट विलेजेस। सो सिग्निफिकेंट differences were seen, exists in income inequality across these villages. काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस देखने को मिले, ठीक है? अब देखो, ये काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। अब उसके अलावा देखो कुछ की चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है ना वो इवन नहीं होती। मतलब क्या है, कि कुछ स्टेट्स हैं जिनको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, कुछ स्टेट्स हैं जिनको काफी कम बेनिफिट मिल रहा है। जैसे यू हैव अनइवन एग्रीकल्चरल ग्रोथ। जैसे कुछ स्टेट्स हैं जो हाई ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं, कुछ स्टेट्स हैं जो लो ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंट टाइम्स में मध्य प्रदेश हैज शोन हाई ग्रोथ रेट्स, स्टेट्स लाइक पंजाब हैव शोन लोअर अमाउंट ऑफ ग्रोथ रेट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ईस्टर्न रीजन को काफी डेवलपमेंट की जरूरत है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी आर सीइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने यही देखा कि अलग अलग लैंड होल्डिंग्स के साइज हैं, तो सबसे ज्यादा जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, दे आर सिग्निफिकेंटली अर्निंग लेस एज कंपेयर टू द हाई और लार्ज पीसेस ऑफ लैंड जिसके पास है, राइट?
So small and marginal farmers are earning quite less as compared to the larger farmers. So that is essentially what is meant by bringing more equity, कि भाई उनको भी proper opportunity मिले कि वो अपनी income को grow कर पाए, ठीक है? So the challenge of income inequality is there. Apart from that, uh, जैसे जैसे male of the people, male in the rural areas, they are the ones who are इन्वॉल्व इन माइग्रेशन, वो बहुत ज्यादा माइग्रेट करते हैं, तो सबसे ज्यादा फिर काफी रोल आ जाता है कि वुमेन विल हैव टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ मेल माइग्रेशन हैपनिंग इन द रूरल एरियाज. So there's an increasing role of women, and there's also the youth is also going away from villages and not very interested in farming as a career. So you have to make it lucrative, or at least earning potential आपको grow करना पड़ेगा, that people are attracted to that particular sector. Otherwise, what will ultimately happen is people will leave that sector, right? So there's a huge role of women and youth in agriculture. एंड देर आर ऑल्सो इंक्लूसिवनेस इश्यूज कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, दे पहले बात तो स्मॉल और मार्जिनल टिपिकली वो होते हैं या लैंडलेस होते हैं. एंड सेकेंडली, अगर दे हैव सम पीस ऑफ लैंड, सो दे आर ऑल्सो फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इन एग्रीकल्चरल मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ सेलिंग देयर प्रोड्यूस, इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरिंग द इनपुट्स. सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी एड्रेस्ड. इंक्लूसिवनेस issues. And apart from that, although we are self-sufficient in terms of food production, there is still a lot of challenge regarding malnutrition. So although we've uh, seen massive growth, but still malnutrition among children and among women and children, it's a major issue. It's a major issue. और ये देखो ऐसी चीज है जो बच्चों की और विमेन की हेल्थ को इम्पैक्ट करता है. हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा तो उनकी एजुकेशन को इम्पैक्ट करेगा. एजुकेशन भी इम्पैक्ट हो रही है, हेल्थ भी इम्पैक्ट हो रही है, तो प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करेगा, राइट? सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो देयर. चाइल्ड स्टंटिंग इश्यूज आर ऑल्सो देयर. जब मेल न्यूट्रिशन रहेगा तो बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, तो चाइल्ड स्टंटिंग, स्टंटिंग मतलब स्टंटेड ग्रोथ का मतलब होता है कि एक ग्रोथ है, एक ग्रोथ का मार्कर, एक तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए, उसमें रुकावट आ गई, उसको बोलेंगे चाइल्ड स्टंटिंग. ठीक है, child stunting. Anemia and all these kind of things are quite prevalent. तो कुछ चीजें, कुछ डेटा देखते हैं बेस्ड ऑन दीज द nutrition based data. Let's see some of that, and that kind of will show us. Data is always helpful to judge such things. So one is this, and then there are other things that we'll see here, which is this. Yeah. So if you see this, what is this table? This is talking about total rural urban, and this is 2015-14 data. All right. तो क्या बताया है? There are children under 5. There are children under 5, and I think this is in terms of percentages. Yeah. Okay. So this is National Family Health Survey third, National Family Health Survey fourth. एंड रूरल अर्बन के लिए अलग अलग है ये. दिस इज टोटल. दिस इज 2015-16 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
for rural separately and urban separately. So this is for children under the age of 5. Stunting कितने लोगों में, मतलब कि एक पर्टिकुलर एज है, उस एज के अकॉर्डिंग आपको एक हाइट अचीव कर लेनी चाहिए, बट अगर आपने वो हाइट अचीव नहीं करी तो यू विल बी कॉल्ड कि योर ग्रोथ इज नॉट फुली फुल एंड यू विल बी कैटेगराइज्ड एज समवन हु इज हैविंग अ स्टंटेड ग्रोथ. ठीक है. तो 48% ऑफ द किड्स ओवरऑल they had the issue of stunting for children below the age of 5. तो मतलब अगर 100% बच्चे हैं जो 5 साल से नीचे हैं, ठीक है, तो उसमें से 48% ऐसे बच्चे जो स्टंटिंग का शिकार है, मतलब उनकी हाइट अप्रोप्रिएटली ग्रो नहीं करी है, एंड दैट इज प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन. ठीक है. ये नंबर घट के 2015-16 में 38.4% हो गया, बट स्टिल इन इटसेल्फ दिस नंबर इज वेरी बिग. And this number in urban areas was quite not, I won't say it's quite small, but relatively lesser than the 2005-6 numbers, and rural areas में this number is about 41%. उसके अलावा फिर ग्रोथ का एक और एस्पेक्ट है कि आप अपने वेट के अकॉर्डिंग अंडर वेट हो क्या, मेल न्यूट्रिशन मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिशन है क्या. ठीक है. So 42% people, 42% kids, 35% kids, and then in this particular number almost 40%, and then this is 30%. These numbers are huge. Wasting weight for height. So wasting जो है, just a second. Just a second. So if we talk about wasting, meaning height, weight for height, that would mean तो बेसिकली वेस्टिंग मीनिंग वेट फॉर हाइट का मतलब होता है कि एक आप एक पर्टिकुलर हाइट के हो और उसके अकॉर्डिंग सो वेट फॉर एज भी होगा, इस एज के अकॉर्डिंग कितना वेट हो जाना चाहिए, और एक वेट अकॉर्डिंग टू हाइट भी होता है. तो अगर आप एक पर्टिकुलर हाइट के हो और उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट वेट नहीं है, उससे कम है, तो दैट विल बी कैटेगराइज एज वेस्टिंग. सो इट्स अ की इंडिकेटर ऑफ malnutrition in children, signifying weight loss due to insufficient food intake. So according to your height, what appropriate weight you should have. But if you have something lesser than that, then that will be categorized as wasting. Okay. So that is approximately 20% here, 21% here, and then it has actually grown over time. This number has grown. In rural areas, it is about 21%. In urban areas, it is about 20%. And then anemia among children. 70% of the children were anemic. Here, the number has improved slightly, but overall, it's a huge number कि almost 60% बच्चे anemic हैं. So that is a big number. So anemia is primarily because of kind of iron deficiency की तरफ भी ये indicate कर सकता है. Too little iron in the body. ठीक है. And then these numbers are talking about women. Women के बीच में anemia कितना है. So 55% in 2005-6 and still very minute improvements, 53%. So almost half of the women overall are anemic in India. एक तरीके से this is what this number is suggesting कि half of the women in India are anemic. BMI below normal. So almost 23% of women uh, they have their BMI below normal. जो भी उनका बॉडी मास इंडेक्स है जो नॉर्मल होता है उससे कम होना चाहिए, बट आजकल थोड़ा सा उल्टा हो रहा है कि obesity is growing, so it's actually the reverse, right? Okay. So these are different other tables. Stunting का percentage in terms of wealth कि wealth
में अलग अलग 4 क्वार्टाइल्स डिफाइन कर दिए, लोएस्ट, सेकंड, मिडिल एंड फोर्थ। लोएस्ट, सेकंड, मिडिल, फोर्थ एंड हाईएस्ट क्विंटाइल्स। सो 20-20%। सो मतलब अगर आपकी वेल्थ इस तरीके से डिफाइंड है कि लोएस्ट 20%, फिर अगले 20%, फिर अगले 20%, फिर अगले 20% और ये हाईएस्ट 20%। तो इस कैटेगरी ऑफ वेल्थ के लोगों के बीच में जो स्टंटिंग की परसेंटेज है वो 51% है, फिर 44, 36, 29 एंड 22। एंड दिस इज फॉलोइंग द पैटर्न, जैसे जैसे आपकी वेल्थ बढ़ रही है एक तरीके से जो परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर फेसिंग स्टंटिंग इज गोइंग डाउन। एंड देन दिस इज द स्टंटिंग डेटा बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, कि if you are from a scheduled caste, 43% of the people who are from scheduled caste are stunted. This is talking about children. And then ST and then OBC and none of that. And then this is in terms of education also. No education, high stunting, primary complete. And I think this is their parental income status, because, we're talking about 5 years under. So the kids won't have a primary or secondary income completed by that time. So I think it's talking about their parents only. No education, lack of education, more stunting, a little bit higher education, lesser amount of stunting, more education, even lesser amount of stunting. So education does play a role in terms of awareness, as shown by the data. ठीक है। एंड देन उसके बाद ये अलग अलग डेटा जो है वो किसके बेसिस पे दिया हुआ है, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से भी ये डिफरेंसेस दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो इफ यू सी, केरला has this particular number. Kerala is 19. Jharkhand has a very high number. Bihar has a very high number. Madhya Pradesh has a very high number. UP has the very high number. Above 40% malnutrition है झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, यूपी में। And amongst the lowest, let's say if we take something below 25, this is 24, sorry, not, this is the 2005-6 data. If we talk about 15, 16, this is the lowest, I feel, 19.7%. And then 25, 26, and then 25 in Punjab, 27 in Tamil Nadu, and all these numbers are there, right? And if we talk about bottom 100 districts with highest malnutrition, so highest malnutrition level के bottom 100 districts को study किया गया, फिर उसमें से कितने कितने districts कौन कौन से state में हैं। तो जो टॉप बॉटम 100 districts हैं in terms of malnutrition, उसमें से 29 districts यूपी में है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि द लेवल ऑफ malnutrition which is prevalent in यूपी, इट्स ह्यूज। तो वो 100 डिस्ट्रिक्ट्स जो वर्स्ट परफॉर्मिंग है उसमें से 29 आर इन यूपी, 25 इन बिहार, 13 इन मध्य प्रदेश, देन झारखंड, एंड देन लाइक 5 5 5 हियर। सो मेजॉरिटी जो है वो यहाँ पे ये 4 स्टेट्स में निकल के आ जाता है, जिसमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दीज आर द वंस विच आर काइंड ऑफ वो टॉप कर रहे हैं बॉटम में। ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन दैट वी हैव हियर। ऑल राइट, तो ये these are some of the facts and figures that kind of tell us कि किस तरीके से इंक्लूसिविटी हो रही है, कहाँ पे challenges हैं। so this is kind of addressing towards the goal of inclusiveness कि भाई हर एक स्टेट को जरूरत है, हर डिस्ट्रिक्ट को जरूरत है, अलग अलग कैटेगरीज को जरूरत है, विमेन को जरूरत है, यूथ को जरूरत है, अलग अलग रीजन्स को जरूरत है ऑफ टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ठीक है। तो ये हमारा जो है डिस्कशन था रिगार्डिंग गोल नंबर 2। एंड देन फाइनली आपने ग्रोथ का गोल होना चाहिए, फिर ग्रोथ को शेयर करने का भी गोल होना चाहिए, और फिर थर्डली आप एक पॉइंट पे आते हो कि ठीक है ये भी कर लिया, इक्वली डिवाइड भी कर लिया, बट वी ऑल्सो हैव टू लुक फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट। वी कांट बी लाइक कि ठीक है अभी जितना ग्रो कर सकते हो ग्रो करो, अनसस्टेनेबली ग्रो करो, कि आगे वाली जनरेशन्स या आने वाले जो इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट के वो आपको बहुत ज्यादा हार्म करें, एंड इट गोज रॉन्ग ऑन यू ओनली।
फ्यूचर जनरेशन, सस्टेनेबिलिटी, आपको ये सब के बारे में भी सोचना पड़ेगा. सो दैट इज वेयर वी विल टॉक अबाउट गोल नंबर 3, विच इज सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, तो ये भी आपका तीसरा गोल होना चाहिए. सो सस्टेनेबिलिटी इज समथिंग दैट वील टॉक अबाउट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देन वी विल सी. तो इस गोल के बारे में बात करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि वो कौन कौन से, तो ये तो गोल्स के डिस्कशन हो गए कि क्या क्या गोल्स होने चाहिए और उसमें क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट डेटा बोल रहा है अलग अलग चीजों के बारे में. फिर हमारा मुद्दा ये आएगा कि ये जो 3 गोल हैं इनको अचीव करने के लिए हमें किस किस तरीके की पॉलिसीज की तरफ देखना पड़ेगा. सो अलग अलग क्या क्या पॉलिसीज हो सकती हैं. what are some of the policies and reforms that will be needed for enhancing, you know, the growth aspect, the inclusivity aspect, and the sustainability aspect is something that we would be talking about. Okay, so we'll be talking about that in the next session. And okay, so I'll see you super soon, and then we'll continue our discussion. Okay, thank you so much. Take care.